कि कैसे मुझे ये उन दिनों की बात है सीरियल मिला था। You don't know what happened today. What happened? Say something. Say something. She's sleeping. Oh my baby, cute baby. Bye bye. I'm going to work. Good morning everyone. Welcome back to our another vlog. और नया दिन, नई सुबह और नई सुबह के साथ चल पड़े हैं हम दोबारा से अपने काम पर। और भाई बढ़िया धूप निकली हुई है। बच्चे के रूम से मेरे को जो भी लेना था सामान मैंने ले लिया है। अब बस कपड़े पहनूंगा, ब्रेकफास्ट करके और सीधा ऑफिस। तो चलो, हो चुकी है घर वापसी। और ये देखो भाई, स्वागत के लिए हमारा नन्हा मुन्ना मेहमान। हाँ भाई, अब ये मेहमान थोड़ी रहा, अब तो भाई ये घर का मालकिन है ना। अब तो ये घर की मालकिन है भाई, मेहमान तो हम है इसके। Solution? यस, This is pork with mushroom. We'll take the dry part out and make it into fried rice. You want to have this? ओके ओके। 这会高兴了。हाँ, 人都弄啊，人都 पापा के 宝 पास 宝 आना 了 है 啊。嗯， पापा के पास आना है। 爸爸，喊爸爸，爸爸，要是爸爸。 कैमरा देखती रहती बस। पापा यहाँ है। कैमरे में, कैमरा कैमरा always looking at the camera. 喊爸爸，喊爸爸，爸爸，爸爸。 She's always looking towards the camera. See? 你说我们才洗了澡，洗澡没来亲我们噻 We。just had a shower. You shouldn't kiss us. Why? You're dirty. I'm not dirty. I'm not working. I was not working at a construction site. Why would I be dirty? People, we can order you. Yeah, people are always kissing me on my face in the office. Yeah. 哎呦哎呦，人家，哦哟哟哟哟， Okay, let me play with her. I already washed my hands before coming home. 爸爸， Okay. 爸爸， 我睇幫他，又來嘛。 Hold this. 他睇辦公室洗下手啦。哦，爸爸。 哎呦！哎呦，有点木气了哇，Sleepy? She had a shower. 你说那几天，那几 Yeah. 那几天没包点儿有点木气了哇哈，She's making you a bubble. Oh my baby, cute baby. Ah, smile at mommy. Look at Smile Papa. at mommy. Papa. No, Papa, nothing to watch. 爸爸，大家在那儿饭哦，啊，还在那儿饭哦， Tonight, that rice, is that enough? Yes, You want yes, more? yes. That's. 夠啦，佢夠啦。够了。 I will eat one bun with it, OK。 if necessary, if necessary. 哦，他餓啦，他就再加個包子，但是來一碗飯夠啦。啊，加包子。啊 He's cooking. ，Yes, You can he's show cooking what your he's fried cooking. rice. Fried rice. Fried rice. And those are the meatballs that you eat. 我覺得應該先加米肉这个嘛，啊，肉啊。 Did you 有點乾。 record anything for today? Yes. Oh, you don't know what happened today. What happened? Because my parents are here and she's little, I'm thinking maybe it's not a good timing for fishing. So I post online and just asking people living in central Auckland if you have extra fish to share after fishing, feel free to give me. And then some guy was just chatting. She was saying he was saying that he's going for fishing today and he can come to drop some fish. And I asked him, can I offer you something in return? Because here in the country you cannot buy people's fish. Obviously. So I asked him, what can I buy you for return? What can I get you for in return? And he said nothing. But then I think it's not good. Plus he's dropping the fish. Yeah. So I just packed some drinks to him, and then he dropped the fish. Two What big drinks? fish. What drinks? Cherry juice and peach balm.
What? Not my peach bomb. Why did you give the peach bomb? Give all the cherry. I hate that cherry. I hate the cherry. Give all the cherries. Oh, by the way, let them know why in this country you can't sell the fish. I don't know why. Maybe it's not for profit or anything. They're trying to protect the living creatures in this country, so you cannot sell. But if you have a commercial license, you have quota, you can sell it. Yes, if you don't have a commercial license, you cannot sell it. Yeah. Parents are creating a lot of background noise, but little bit. Give you more rice. Oh, yeah, it's too much rice. 上个鸡这太多了，太多了，太多了。 Okay. 他说了，只有一 Just 碗 take 肚，只 some. 有一碗 Yeah, 肚。 take some out. That's it. That's it. Thank you. Say thank you to your father and your 他 mother. 说谢谢你们。啊，不谢，你工作辛苦了。应该的。 You're welcome. You hardworking. You must be tired after work. At least your parent recognized my hard work. 应 I 该 also 的。 recognize it. Then where is my love and my kiss? Huh? Not in front of them. 应该的哈，应该的哈。哎呦，你说你几天不忙嘛，认这么多。 Say something. Say something. She's sleeping. You cannot force it out. Okay, then 哦， sleep. 看到你都不会 Shall I put her in that swing? 王天看到他就是小溪了。 You can. She can enjoy. Yes. 是你把等会儿就睡了，我又把你起来，好不好？哎呀呀呀呀呀！哎呀呀呀呀呀！哎呀呀呀，高兴呀！弄得高兴到今天。嗯啊，嗯啊，哈哈，哈哈，啊，书面的刚才差不多了。晓得了哇？哎，啊，要是晓得到了哈。哦，要睡觉了哇？ देखो यहाँ पे नानी और इसका खेलना चल रहा है। यहाँ पे भाई खाना तैयार हो चुका है। वो जिस फिश की बात हो रही थी उसकी सशीमी तैयार है। ये मेरे फ्राइड राइस आ गए। थैंक यू थैंक यू। 要睡觉对吗？你都想睡觉对吗？ No, you can also eat. Come. I am eating. Okay. That's what I mean. You're eating us to eat first. Okay okay. 手机呢？ 要是不累了哈，要是不累了哈， चलो तो भाई खाना खाते हैं अब। 要是不累了哈。 तो आज का वीलॉग ख़त्म करने से पहले आपको एक स्टोरी बता के जाता हूँ। और ये स्टोरी है कि कैसे मुझे ये उन दिनों की बात है सीरियल मिला था और तब मैं 24 साल का था बाय द वे। तो ये समय है भाई 2017 का। और 2017 में मैं अपने घर से दोबारा वापस आया था क्योंकि मैं क्या हुआ था ना कि शुरुआत में तो मैं 2013 में आशिकी 2 के टाइम पे मुंबई चला आया था। बीच में अपना कॉलेज वॉलेज छोड़ के उस टाइम पे जो लोग साथ में थे उन्होंने अच्छी गाइडेंस नहीं दी, अपना फ़ायदा देख रहे थे, जो भी बातें थी छोड़ो। वो भाई मुझे ले गए और वहाँ पे मुंबई में जाके मैंने अपना 1-1.5 साल, मेरे को जबकि सीरियल मिल रहे थे मेन लीड के, मुझे करने से रोका क्योंकि मैं उस टाइम पे भाई बड़ी बड़ी बॉलीवुड की पार्टीज अटेंड करता था। बड़े बड़े बॉलीवुड के डायरेक्टर्स के साथ बैठना उठना होता था। मोहित सूरी वगैरह इनके बंगले पे खूब पार्टियाँ करता था मैं। तो मुझे ये सब लोग ये हिदायत देते थे कि अबे यार टीवी वगैरह थोड़ी करेगा तू, पागल है क्या, फिल्मी बंदों के साथ बैठता है, फिल्म में आएगा तो सीधा फिल्म में आएगा, ये सब मत कर। उस टाइम पे मेरे को बढ़िया बढ़िया सीरियल मिल रहे थे मेन लीड के जबकि, और अच्छा खासा पैसा मिल रहा था। और सोचो ज़रूरत तो थी भाई पैसे की, इसीलिए तो आए थे यार उठ के मुंबई। नहीं, और इतनी कम उम्र में 19 साल की उम्र में सोचो इतना ज़्यादा बड़ी चीज़ें मिलने लगे, सीरियल वगैरह मिलने लगे, तो किसका मन नहीं करेगा। लेकिन नहीं, मैंने फिर भी ये सोचा कि यार चलो मैं जिनके साथ हूँ, जिनको अपना मेंटोर मान रहा हूँ या जिनकी मैं हिदायतें ले रहा हूँ, इनकी पूरी बात सुनता हूँ। अगर ये मना कर रहे हैं सीरियल करना अच्छी बात नहीं है तो नहीं होगा। नहीं किया था, फिर थोड़े टाइम के बाद समझ आने लगी कि भाई तो सब मेरा फ़ायदा उठा रहे हैं और कुछ नहीं है। और इससे बढ़िया है कि अपना वापस जा तू दिल्ली जाके अपना कॉलेज कंप्लीट कर जो तू अधूरा छोड़ के आया है। तो दिल्ली के वापस गया एज एन एक स्टूडेंट, मैंने एडमिशन लिया दोबारा दिल्ली में। और तब मैं इतना ज़्यादा पढ़ाई में घुस गया था कि बस पूछो ही मत।
पता नहीं क्या हो गया था, बुक्स से इतना ज़्यादा प्यार हो गया था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि धोखा हो गया मेरे साथ लाइफ में। मैंने एक बहुत अच्छी खासी चलती हुई ज़िंदगी को ब्रेक लगा दिया एक सपने को लेकर, और उस सपने को जीने के लिए जब मैं गया, जबकि मेरे को मिल भी रहा था, जिस चीज़ के लिए लोग सोचो मरते हैं वहाँ पे, वो मेरे को अपने आप आगे से आगे आ रहा था, वो काम को मैं मना करके आया हूँ। तो ऐसा लग रहा था कि यार ये जीवन में मेरे साथ क्या हो गया। तो बहुत ज़्यादा हताश था, इसलिए भी शायद मैं किताबों में ज़्यादा घुस गया, अपना पूरा समय किताबों में देने लगा। तो उसका ये फ़ायदा हुआ कि बहुत सारी चीज़ें पता लगी, लिटरेचर वगैरह बहुत पढ़ने लगा, इंग्लिश ऑनर्स का स्टूडेंट था मैं। अब उसका नुकसान ये हुआ कि मैं सोशली कट ऑफ हो गया अपने दोस्तों से, अपने सर्कल से, अपने परिवार से, अपने आसपास के लोगों से, और मेरी जो सोच थी वो काफ़ी ज़्यादा ऐसी होगी कि मैं एडजस्ट ही नहीं कर पा रहा था। जो हंसी मजाक या जो चुटकुले मैं मारता था अपने दोस्तों के साथ बैठ के, वही चुटकुले अब वो मेरे सामने मार रहे थे, तो मुझे हंसी नहीं आती थी, बल्कि मैं उनको जज करता था कि यार ये कैसी सोच है इनकी, ये पैट्रियार्कल सोच के, ये ऐसी सोच के, मतलब फुल लिटरेचर वाला जो होता है ना, वैसा बंदा बन गया था। अब गलत उसमें कुछ नहीं है, लेकिन आप जिस माहौल में रह रहे हो, जिस समाज में रह रहे हो, अगर आप वैसे नहीं रहोगे तो आप खुश नहीं रह पाओगे। कहते हैं ना, व्हेन यू आर इन रोम एक्ट लाइक अ रोमन। अब मैं रह तो रहा हूँ इंडिया में, और सोच मेरी हो चुकी थी भाई बाहर वाली, तो वो चीज़ें एडजस्ट करना मेरे लिए बहुत तकलीफ की बात हो गई थी। तो क्या हुआ भाई, जैसे तैसे करके जब ये सारी चीज़ें चल रही थी, तो मैंने फिर दोबारा अपना मूड बनाया कि यार अब मैं सोशली और कट ऑफ नहीं रह सकता, चीज़ों में दोबारा आता हूँ। बहुत डिप्रेसिंग सा चैप्टर आया लाइफ में, और किताबों वगैरह से फिर बहुत ज़्यादा फोबिया हो गया, छोड़ दी किताबें, कॉन्फिडेंस लो हो गया, मेरे बेसिकली डिप्रेशन में आ गया। तो वो कुछ 1-1.5 साल मेरा बहुत बुरा बीता। और फिर जब धीरे धीरे चीज़ें थोड़ी ठीक होने लगी, तो अपना पहाड़ों पे जाके अपना प्रोफेशनल कोर्स किया, माउंटेनियरिंग का बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स। वो करने के बाद थोड़ी हिम्मत आई कि नहीं यार सब कुछ ठीक है, बस मेरे को दोबारा से अपना कॉन्फिडेंस रीगेन करना है। और कॉन्फिडेंस रीगेन करने का तरीका मुझे लगा कि यार मैं एक्टिंग में अच्छा हूँ, और मेरे को 2013 के आसपास जब इतने सारे सीरियल मिल रहे थे, तो अभी फिर से जाऊँगा, मेरे को फिर से मिलने लग जाएंगे, ऐसा कुछ बिगड़ थोड़ी गया मेरी लाइफ में। तो एक बार और हिम्मत मार और चला जा। तो 2016 के आसपास मैंने क्या किया, घर वालों से छोटा सा अमाउंट लिया मैंने, कुछ 60-70 हज़ार रुपये का, और मैंने कहा कि मेरे को एक बार और मौका दो, और मेरे अगर ये पैसे ख़त्म हो गए तो मैं वापस आ जाऊँगा, फिर दोबारा कोशिश नहीं करूँगा, मेरे को बस अभी के लिए इतने पैसे दे दो और मेरे को मुंबई जाने दो। घर वालों ने सपोर्ट किया, पैसे दिए, और मैं पहुँच गया भाई मुंबई। और जितने पैसे दिए थे उतने पैसों में तो भाई मुंबई में तो आपको पता ही है, जो मुंबई में रहता है या जिसको नॉलेज है या जिसके जानकार रहते हैं, कि इतने में कुछ गुजारा नहीं होता भाई, इतना तो महीने में उड़ जाता है। तो इसलिए मैंने क्या किया, मुंबई के आउटस्कर्ट्स में मीरा रोड नाम की एक जगह है, और वहाँ के भी एकदम ये लगा लो बिल्कुल ही खस्ती सी जगहों पे एक सिंगल रूम मैंने ले लिया अपने किराए पे। और उसका मेरे ख्याल से किराया मुश्किल से कितना 8,000 था या कुछ था, इतना ही कुछ था, या शायद उससे भी कम। उस किराए पे मैंने वो अपना मकान लिया, और मैं वहाँ से डेली कम्यूट करने लगा ट्रेन से, लोकल ट्रेन से। और लोकल ट्रेन से भाई मैं कम्यूट करता था, जिसमें मेरे को 1.5 से 2 घंटा कई बार लग जाता था अंधेरी पहुंचने में, जहाँ पे आराम नगर वगैरह में एड्स वगैरह के ऑडिशन चलते थे, या और भी किसी सीरियल का मेरे को अगर पता लगता था ऑडिशन चल रहा है तो वहाँ चला जाता था। मेरा सेट था कि मैं डेली सुबह उठूँगा, 11-11:30 बजे की लोकल पकड़ूंगा, क्योंकि उस टाइम तक ऑफिस आवर्स जो हैं वो हल्के हो जाते हैं, तो भीड़ नहीं मिलती आपको ट्रेन में। और 11-11:30 बजे मैं बैठ के उस ट्रेन में मैं निकल पड़ता था अंधेरी के लिए। और अब मैं कपड़े कौन से पहनता था, गंदे पजामे, टी शर्ट, क्योंकि मेरे को पता है लोकल ट्रेन में अगर जाऊंगा तो गंदे हो जाएंगे। और बैग में रखता था अपने अच्छे कपड़े, हेयर ड्रायर और जो भी अपना सामान था। भाई मैं ऐसे जाता था पहले, लटक के धक्के खाता हुआ लोकल ट्रेन में अंधेरी तक। अंधेरी से फिर अगर मान लो शेयरिंग ऑटो करना है या कुछ करना है वो लेता था। और कई बार ऐसे ही ऑटो में ही ऐसा भी हुआ है कि ऑटो में ही कपड़े बदल रहा हूँ, सोचो पैंट बदल रहा हूँ, शर्ट बदल रहा हूँ, और ऑटो वाला देख रहा है क्या हो रहा है, मैं तू चलाता रहा भाई। इस तरीके से स्ट्रगल करके दिन के 4 से 5 ऑडिशन में डेली देने लगा। और ये स्ट्रगल मेरी 6 से 7 महीने चली। अकेला रह रहा था बाय द वे, अपने आप ही खाना बनाना, अपने आप सब कुछ करना, घर के अंदर ही मैं अपने आप, क्योंकि जिम के पैसे तो मैं भाई खर्च नहीं करना चाह रहा था, पैसे तो बहुत कम थे, लिमिटेड थे, तो खुद ही अपने घर पे अपने आप जिम करता था जितनी भी हो पाती थी, और बढ़िया बॉडी बना ली थी। अब ये सब चलते चलते 6 या 7 महीने बाद मुझे कॉल आता है, और उस टाइम पे मैं हूँ सिक्किम में,
क्योंकि घर वालों के साथ एक फैमिली ट्रिप बन गया था मेरा और मैं सिक्किम गया हुआ था। तो सिक्किम में मुझे कॉल आता है कि आपने ऐसे ऐसे ऑडिशन दिया था इस प्रोडक्शन हाउस में। मैं कहा यार मैं तो इतने देता हूँ, दिया होगा। हाँ, मैं कहा हाँ दिया था, बताओ। तो कहते हैं कि आपका ऑडिशन ना थोड़ा ठीक लगा है हमको, अगर मान लो बात आगे बढ़ती है तो कितना चार्ज करोगे आप पर डे। अब सोचो ये बात वो उस बंदे से पूछ रहा है जिसने पिछले अपने 7 महीने एकदम, समझ रहे हो, कैसे गरीबी में काटे हैं। अब नॉर्मली ऐसे में क्या होता है, या अगर आप खुद भी जानते हो, अगर आपको ऐसा कॉल आया है तो आप क्या सोचोगे, यार काम मिल रहा है, पैसे ही क्या है, पैसे तो बाद में देखे जाएंगे, हाँ हाँ मैं कर लूँगा, आप जो भी बोलोगे। मैं वो नहीं करता भाई, मैं उनके ब्लफ को समझता हूँ। मेरे को पता है कि मेरे पास अगर कॉल आ रहा है तो खाम खा नहीं आएगा, किसी के पास इतना फालतू का टाइम नहीं है मुंबई में आपको कॉल करके बोलेगा ये कॉल आया है तो इसका मतलब है चीज़ें काफ़ी हद तक हो चुकी है। तो मैंने बताया अपना एक बजट, अब जो कि ऑब्वियसली हाई था पर डे का। भाई मैंने अपना बजट दे दिया उनको। अब वो पर डे का जो मैंने बजट दिया उनको, उस पर वो मेरे को बोलता है नहीं नहीं इतने में तो नहीं हो पाएगा, डबल डिजिट में नहीं, हम सिंगल डिजिट में इतना देंगे। मैं कहा आपने फिर गलत बंदे को फ़ोन किया है, मैं इतने कम में काम नहीं करता, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय। मैंने कॉल कट कर दिया। अब भाई सोचो इतनी हिम्मत ऐसे जीने के बाद 7 महीने तक मैंने कॉल कट कर दिया। मैं कहा देखी जाएगी, कॉल तो आएगा। ये मेरा मन कह रहा था कि मैं कहा कुछ नहीं है, ब्लफ कर रहा है सामने वाला, तू समझ। मैं कहा ठीक है भाई। अब सिक्किम में घूम रहा हूँ, 2 दिन हो गए 3 दिन हो गए, पर मन में भी वो चल रहा है धक धक कि यार क्या है यार, कभी गड़बड़ तो नहीं होगी। वही है ना, नेगेटिव थॉट ज़्यादा आने लगती है, जैसे टाइम पास होने लगता है। मैं कहा नहीं, पर तू अटल रहे, तू नहीं करेगा अब आगे से कॉल, कुछ नहीं आएगा उसका। भाई फिर आता है उसका फ़ोन, सिक्किम में ही हूँ मैं अभी, और फिर उसका फ़ोन आता है, वो कहता है मैं ऐसे ऐसे कोऑर्डिनेटर बोल रहा हूँ। अच्छा किया आपने वो डबल डिजिट का फिगर बताया, उस टाइम पे मेरे साथ कास्टिंग वाले बैठे हुए थे और उन्होंने फ़ोन करवाया था, आप स्पीकर पे थे। और बहुत बढ़िया भाई, आपने बहुत सही किया है, और जो भी आपका रेट है ना उसी पे रहना, और 20% ऑब्वियसली मेरा होगा क्योंकि मैं कोऑर्डिनेटर हूँ और मेरे थ्रू आपने ऑडिशन दिया था, तो मेरा 20% होगा आपकी कमाई में से। मतलब कि मैं पर डे जितना भी काम करूँगा, पर डे की कमाई में से, वो डबल डेट की कमाई में से 20% उसको जाएगा। मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है, मैंने हाँ बोल दिया। मैं हाँ भाई ठीक है, तू टेंशन मत ले, मैं उसी पे अटका रहूँगा। कहते हैं हाँ अब उनका कॉल आएगा ना, आप चेंज मत करना। मैं नहीं मैं नहीं करूँगा। मैंने फिर ध्यान दिया पूरा, मैं कहा यार ये कौन सा ऑडिशन है, क्या है, कब दिया था, कैसे दिया था। मैंने सारे अपने मैसेजेस चेक किए, इस कोऑर्डिनेटर का तो कहीं पे भी मैसेज नहीं है। मैं कहा ये क्या गोलीबाजी है, ये क्या गोलीबाजी कर रहा है भाई। मेरे को पता लगा फिर जब मैंने अपने और मैसेजेस चेक किए और मेरे को याद आया अच्छे से, मैं कहा ये ऑडिशन तो मैंने अपने दम पे जाके दिया था, इसमें तो कोई इन्वॉल्व था ही नहीं, ये किस बात के 20% मांग रहा है। मैं कहा चल कोई नहीं, तेरे पास कम से कम प्रूफ है। मेरे पास मतलब ठोस प्रूफ था पूरा, मेरे मैसेजेस में कहीं पे भी उसका कोई मैसेज नहीं, कुछ नहीं। मैं कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे इसको, अभी जो भी है चालबाजी कर रहा है इसको करने दे भाई। फिर उसके बाद आता है मेरे पास एक ऐसे कास्टिंग डायरेक्टर का फ़ोन जिसके पास मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट फेसबुक पे भेजे हुए 4-5 साल हो गए थे, कभी एक्सेप्ट नहीं की। बहुत बड़ा कास्टिंग डायरेक्टर था, तो थोड़ा इनकी वो रहते हैं एटीट्यूड में कि ना जब तक बंदे से काम नहीं है तब तक उससे कोई मतलब नहीं। उस बंदे का मेरे को कॉल आ रहा है और ट्रू कॉलर पे मेरे को शो कर रहा है उसका नाम, और मैं अब फ़ोन नहीं उठा रहा। सोचो इस बंदे का फ़ोन नहीं उठा रहा है जिसका मैं 5 साल से वेट कर रहा था कि ये एक बार बात हो जाए। मैं कहा नहीं, फ़ोन नहीं उठाना, कट गया। उसके बाद दोबारा 1-1.5 घंटे बाद दोबारा कॉल आता है, वेट करता हूँ, 4-5 रिंग जाती है, फिर उठाता हूँ। हेलो, हाँ कौन? वो आगे से अपना मतलब नाम बता रहा है और मैं कह रहा हूँ कौन? अरे भाई मैं ये कास्टिंग डायरेक्टर। हाँ अच्छा बोलो भाई वो बात हुई होगी आपकी उस कोऑर्डिनेटर से, उसने बताया आप इतना रेट चार्ज कर रहे हो। मैं कहा हाँ यार, आपको पता है ये कितना बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, कितना बड़ा शो करने जा रहे हो आप, आपकी लाइफ बदल जाएगी। पैसे के चक्कर में यार ये सब मत करो मेरी जान, पैसा तो आता जाता रहेगा, पैसा तो आप कभी भी कमा लोगे इस इंडस्ट्री में। अभी आप रिलेशन बनाओ हमारे साथ, इतना ज़्यादा मत मांगो, हम आपको इतना दे सकते हैं। आपको जितना लास्ट टाइम बताया था, मतलब जितना उन्होंने मेरे को लास्ट टाइम बताया था, उससे 1-2 हज़ार और ऊपर बढ़ा के मेरा पर डे बता रहे थे। मैं कहा नहीं, मैंने जो आपको बताया उसी में होगा। कहते पक्का? मैं कहा पक्का। चलो ठीक है भाई, अगली बार देखेंगे, अभी तो नहीं हो पाएगा। मैं ठीक है, मुझे पता था कि ब्लफ कर रहा है साला। काट दिया। काटने के बाद भाई
दिन बीत रहे और दिन बीत रहे और दिन बीत रहे और वो चाटी बढ़ रही है। अब तब तक मैं मुंबई वापस आ चुका हूँ अब, क्योंकि मुझे पता है चीज़ें क्लोज आ रही है। आया भाई मुंबई आने के बाद अब उस बंदे का फ़ोन आता है दोबारा, यार कहाँ से हो तुम, टोन देख रहे हो एकदम चेंज, अब वो पर्सनल होने की कोशिश कर रहा है। मैं कहा यार मैं तो दिल्ली से हूँ। अच्छा यार मैं भी दिल्ली से ही हूँ यार। अच्छा यार बहुत बढ़िया, कहाँ से, ये फलान जगह से। अच्छा यार भाई यार तू तो क्या यार ये पैसे के चक्कर में ये इतना बड़ा शो छोड़ रहा है, छोड़ना यार, कर ले यार, आगे मेरे पास बहुत शो आते हैं, मैं तेरे को किसी और शो में अच्छा बजट दिला दूंगा। मैं कहा किसी और शो में दिलाओगे तो इसमें क्या जा रहा है। अरे नहीं यार तू समझ नहीं रहा है, इनके पास बजट नहीं है, वरना मेरे को कोई दिक्कत थोड़ी है, भाई है तू मेरा। मैंने कहा मैं भाई हूँ। मैं कहा चलो अब मैं एक बात बताता हूँ भाई आपको, पिछले 5 साल से इस भाई ने ना आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी हुई है जो आज तक एक्सेप्ट नहीं हुई, ठीक है। ये जो गोली पिला रहे हो ना आप, ये किसी नए बच्चे को पिला रहे हैं जो बेचारा किसी छोटे से शहर से उठ के आता है, जिसको समझ नहीं होती। मैं कहा मैंने दुनिया देखी है, मैं तेरे मामा का लड़का नहीं लगता। मैं कहा मैंने अच्छे से समझा हुआ है, इंडस्ट्री को घोट के पिया हुआ है, काम भले ही ना किया हो पर इंडस्ट्री के एकदम रग रग में घुसा हूँ। क्योंकि मैं तो यार 3-4 साल पहले पूरा फिल्मी लोगों के साथ बैठ के आया था, बड़े बड़े डायरेक्टर, आशिकी 2 के डायरेक्टर मोहित सूरी वगैरह, इनके साथ बैठा हुआ हूँ। मेरे को तो सारा गेम पता था इनका, क्या करते हैं, किस तरीके से खेलते हैं इमोशंस के साथ। आपसे कम बजट में साइन करवा लेंगे सामने चैनल से, क्योंकि तो बीच के वो है ना मीडिएटर, पैसा इनका थोड़ी है, प्रोड्यूसर्स का पैसा होता है चैनल का। अगर मैं सोनी टीवी पे काम कर रहा हूँ तो सोनी टीवी का पैसा है, कलर्स पे काम कर रहा हूँ तो कलर्स का पैसा है। प्रोड्यूसर्स खाली मीडिएटर होते हैं जो सारा नीचे का संभालते हैं। एक तरीके से ये वो है क्या बोलते हैं उनको, जब आप घर बनवाते हो किसी से, ठेकेदार। ये ठेकेदार है साले, समझे, ये ठेकेदार हैं और वो पैसे देते हैं। तो जब वो ये क्या करता है, ये मुझे कम पैसे में साइन करवा के उससे मोटा चेक लिखता इस बात पे कि इसने इतना मांगा है, और क्योंकि लास्ट में जो चेक आते हैं साइन होंगे वो प्रोड्यूसर से आते हैं, वो इससे नहीं आते। ये देता है प्रोड्यूसर को, प्रोड्यूसर अपने बजट में से जिस बजट पे एक्टर्स को या डायरेक्टर्स को या कैमरामैन को साइन किया होता है, फिर उनके चेक बन के जाते हैं प्रोड्यूसर से। तो यही चाह रहा था मैं, कहा ऐसा सीन है, मैं नहीं करने वाला कुछ भी कम, ठीक है। और भाई मैंने इस तरीके से तड़ी में बात की, वो बंदा सिर्फ इतना बोला ठीक है कल आ जाओ ऑफिस में साइन करते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। अब बारी थी भाई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की। पहुंच गया मैं ऑफिस में, उसके रूम में घुसते ही सामने वो कास्टिंग डायरेक्टर बैठा है और राइट में देखता हूँ मैं वो कोऑर्डिनेटर जिसने मेरे से पीछे बात की थी कि 20% मेरा रहेगा, अटके रहना भाई अपने डबल डिजिट पे, आप सही ले रहे हो, क्योंकि उसको तो फ़ायदा था ना, जितना मेरा पैसा होगा उसको उतना अच्छा कट मिलेगा 20% में से। जैसे ही मैं कमरे में घुसता हूँ मैं कहा हाय भाई हेलो, हाय हेलो करने के बाद मैं कहता हूँ ये यहाँ क्यों बैठा है, और उसके मुंह से एकदम सारा रंग उतर गया। क्या बात कर रहे हो भाई, मैं ही तो कोऑर्डिनेटर हूँ, मेरे से तो बात हो रही थी आपकी। मैं कहा किस बात का कोऑर्डिनेटर, कोई प्रूफ है तुम्हारे पास कि ये ऑडिशन मैंने तुम्हारे थ्रू दिया था, तुमने मेरे को इसकी इन्फॉर्मेशन भेजी थी। अरे भाई ये क्या गेम खेल रहे हो आप मेरे साथ ही गेम खेल रहे हो। मैं सुन, गेम तू खेलने की कोशिश कर रहा था, तेरे गेम पे मैंने और अपना गेम मारा है। देखे अगर मैं उस टाइम तेरे को मना कर देता कि नहीं मैं तुझे कोई कट नहीं दूंगा, मेरा तो इनके साथ कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं हो पाता, क्योंकि मेरे पास तो नंबर था ही नहीं कास्टिंग वाले का, ना मेरी कोई इससे बातचीत होती। तू इसको कुछ भी बोल देता कि वो तो अवेलेबल नहीं है, उसके पास डेट्स नहीं है, वो कोई और काम कर रहा है। तो मुझे तो तेरे साथ हाँ मिलानी थी ना, तो मैंने मिला ही हाँ मैं। अब तू मेरे को बता। अरे नहीं ये तो गलत बात है, आपको ये ऐसा थोड़ी होता है, इंडस्ट्री में प्रोफेशनलिज्म चलता है। मैं कहा अगर प्रोफेशनलिज्म चलता है ना इंडस्ट्री में तो एक काम कर, मुझे एक मैसेज दिखा दे, एक कॉल दिखा दे कि तूने मुझे ये भेजा है और ये ऑडिशन मैंने तेरे थ्रू दिया है। तू 20 मांग रहा है, मैं 50 दूंगा, और बता। बोलती बंद, क्योंकि भेजा तो उसने कुछ नहीं था। ये क्या करते हैं सारे के सारे जो नए ऐसे बच्चे आते हैं ना, पता नहीं मेरे अलावा और भी जो उसमें कैरेक्टर आर्टिस्ट है, तो नाम तो क्या बताऊँ मैं आपको, उनसे 20% ले रहा था। उनको भेजा था ऑडिशन या नहीं भेजा था मुझे नहीं मालूम, लेकिन सबसे ले रहा था। और इनकी एक और बताता हूँ, अंडर द टेबल इनकी ये सेटिंग होती है कि उस 20 में से 10% कास्टिंग डायरेक्टर को देते हैं। कास्टिंग डायरेक्टर खुल के तो ले नहीं सकता उनसे, क्योंकि वो जॉब पे है, उसका पेरोल तो प्रोड्यूसर से बंधा हुआ है। प्रोड्यूसर को पता लग गया हमारे आर्टिस्ट से 10% ले रहा है, नौकरी से निकाल देंगे, तो ये उसके थ्रू लेते हैं। तो इनकी सेटिंग होती है कि भाई इस एक्टर को ला रहे हैं हम, तो इससे 20% ले ले कोऑर्डिनेटर बन के, 10% हमारा। तो मैंने कहा इसको बाहर निकाला बाहर। 1 to 1 बात हुई, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और वो शो करने लगा। और उस शो में वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्टर्स में से था मैं। तो ये थी भाई स्टोरी मेरी
ये उन दिनों की बात है, किस तरीके से मुझे मिला, कैसे मैंने उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और क्या क्या चीज़ें आपको पता भी नहीं चलता शो मिलने से पहले होती है। और ये पॉलिटिक्स तो शो से पहले की थी, इतनी सी। शो मिलने के बाद जो पॉलिटिक्स शुरू होती है भाई साहब, वो है असली खून चूसने वाली चीज़। और उसी के बाद जब लंबे टाइम तक मैंने ये शो किया, इसको छोड़ने के बाद एक और हिट शो किया, मुझे समझ में आ गया है लगभग हर जगह पे यही कल्चर है। और मैं इस रोज़ की लड़ाई को लड़ने के लिए रेडी नहीं हूँ। रोज़ रोज़ लड़े जाओ। दिमाग की शांति चाहिए थी, दिमाग की शांति। पैसा मैं कमा लूँगा कहीं पे भी, इतना मेरे में खुद में है गुर्दा। तो बस भाई, ये है आज के व्लॉग में। उम्मीद है आपको कुछ लोगों को फ़ायदा हुआ होगा जो एक्टिंग के लिए जाना चाहते हैं या थोड़ा बहुत जानना चाहते थे क्या रहता है इंडस्ट्री में। बाकी मिलते हैं आप लोगों से अगले व्लॉग में, तब तक के लिए